भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो 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 भगवते वासुदेवाय। तो भगवत गीता के 7वें अध्याय में आप सबका हार्दिक स्वागत है। I welcome you all to the 8th day and the 7th chapter of Bhagavad Gita for children with us today. So, as usual, let's start with the story. चलो आज एक नई कहानी से शुरुआत करते हैं। एक गुरुजी ने उनको कहा कि चलो उस गुफा में, छोटी सी गुफा थी, उस गुफा में जाके अपना साधना करो। तो उस गुफा में वो साधना करते थे। 2-3 साल के बाद उन्होंने एक और सज्जन को भेजा, तो उनसे पूछ के आओ उस गुफा में जगह है क्या, मैं भी आ सकता हूँ क्या। तो वो शिष्य जाके पूछने लगे उनसे, पूछे कि आप क्या गुरुजी अब यहाँ आना चाहते हैं, आपके पास जगह है क्या। तो उन्होंने कहा गुरुजी को बोल दीजिए यहाँ कोई जगह ही नहीं है। देखो कितना घमंडू है ये, तो गुरुजी आना चाहते हैं इनकी गुफा में, बोलता जगह नहीं, इतना बड़ा जगह, इतनी छोटी तो नहीं, गुफा में 10 आदमी रह सकता है यार। वो करके गुरुजी के पास चुगली किया, उसने जाके बोला कि गुरुजी देखिए वो अपने तो इतना पार्शियलिटी करते हैं उस शिष्य पर, आप उसको इतना मानते हो, देख के वो तो बोलता है घमंड हो गया बड़ा, तो बोलता है जगह ही नहीं। गुरुजी मुस्कुरा के बोला ठीक है उसको बुलाओ। तो जब वो बुला रही है, उनसे पूछा गया था कोर्ट मार्शल क्या तुमने ऐसा बोला क्या। तो बोलने लगे हाँ गुरुजी देव, और कहाँ कोई जगह है, आप सब जगह पूरी आप ही कब्जे में है, पूरी जगह आपने ले लिया और मैं कहाँ से जोड़ देगा।
मेरे दिल दिमाग गुफा क्या है, सब कुछ में सब कुछ मेरे दिल की गुफा में पूरी की पूरी तरह से आप ही छाया हुआ, और कोई जगह ही नहीं। इसलिए मैं बोलना पड़ा, सच बोलना पड़ा मुझे, और कोई जगह बचा ही नहीं। तो गुरु जी देखो ये बात है, तो क्या समझे, मुस्कुराते बोलो। इस तरह से सारी दुनिया एक ही तरंग चेतना से बनी है, एक ही चेतना। जो सब में अपने आप को देखते हैं वो सच में देखा मुझको से भगवान विष्णु कहते हैं। So, in today's story, we came to know that this whole universe is full of divinity. Everything, wherever you can see, it is all divinity. तो आज की कहानी से हमने ये सीखा कि ये पूरा संसार दिव्यता से बना हुआ है। आसपास हम जो भी देख रहे हैं या हम खुद, वो दिव्य चेतना से बने हुए हैं। Kavita, should I translate in English also the story? So once upon a time, there was a guru who sent one of his disciples to one of the caves to meditate. And after a few years, just to have a check on him, he sent another person. And he asked the other person to go and ask him that if he has some space, as Gurudev himself wanted to visit, to stay in the cave. And this other person went, asked this person, Gurudev is asking, is there any space available? He would like to come. The first person who was meditating there, he said, no, I don't have any space. You please request Gurudev to be there. Listening to this second person got very, annoyed. He said, how come he was just thinking, he left the place and just started thinking in his mind, what a crackpot he is. There is so much space in the cave, like 10 people can be in this cave, and this person is denying Gurudev to come to the cave. He was very angry. He went to Gurudev and he asked, Gurudev, he has become so arrogant, and he said there was a lot of space, and he said there is no space for you. Oh, Gurudev said, okay, he said so. Okay, you go back again and call him. And then the second person goes and calls the first person. And Gurudev says, tell me, what did you say? He said, yes, I said this, what first person is saying. But Gurudev, I can see only you everywhere. You are filled in my heart. You are filled in this entire cave, entire life, wherever I can see only you. So I have to tell the truth that there is no space left. You are already there everywhere. So then Guru smiles and he says, yes, this is the way. This whole creation is a wave function. It's all one energy through which everything is made up of. And Krishna also says today to us that everything is me. Yeah. तो यही कृष्ण भी हमें बताते हैं आज कि सब मैं ही हूँ। देखते हैं कैसे। So the name of the 7th chapter is ज्ञान विज्ञान योगा। तो 7वें अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग। श्री भगवानुवाच ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्य शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते। Sri Krishna says, I shall now reveal unto you fully this knowledge and wisdom, knowing which nothing else remains to be known in this world. अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अब मैं तुम्हें वो ज्ञान बताने जा रहा हूँ जिसे जानने के बाद और कुछ भी जानने को शेष नहीं रह जाएगा इस संसार में तुम्हारे लिए।
खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा. Earth, water, fire, air, space, mind, intellect, ego. These are 8 components of my material energy. I have a superior energy too. It is called Jiva Shakti, which is present in each and every one of us as a soul. तो भगवान कहते हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहम, ये मेरे ही भौतिक ऊर्जा के 8 भाग है, मेरी ऊर्जा के। और इन सब से श्रेष्ठ ऊर्जा आत्मा है, वह भी मैं ही हूं और उसे जीव शक्ति भी कहते हैं। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं ऋषु. I am the taste in water, O son of Kunti, and the radiance of sun and the moon. I am the sacred syllable Om in the Vedic mantras. I am the sound in ether and the ability in human. आगे भगवान कहते हैं कि पानी में स्वाद मैं हूं, हे कुंती पुत्र, सूर्य में किरण मैं हूं, चंद्र में भी किरण मैं हूं, मंत्रों में ओम मैं हूं, वैदिक मंत्रों में ओम मैं हूं, आकाश में आवाज मैं हूं और मनुष्य में कार्य करने की क्षमता भी मैं ही हूं। दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते. My divine energy Maya, consisting of 3 modes of nature, Sattva, Rajas and Tamas, which is creating delusion, which is very difficult to overcome. But those who surrender onto me cross over it easily. मुझसे, मेरी दिव्य ऊर्जा से बना ये जो सब माया है, वह सत्व, रजस और तमस से बना हुआ है, जिसे पार करना बहुत ही कठिन है। पर मुझे, मेरी शरण में जो आता है, वह इसे बड़ी आसानी से पार कर लेता है। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा. Oh, best among us the Bharatas, there are 4 kinds of pious people engaged in my devotion. The distressed, the sad ones, they keep on crying and going to God and just keep on crying that I am very unhappy, I am sad, I am so blah, blah, blah. The second type, the seekers of knowledge. The people who keep on asking, yeah, ma'am, can you please tell me this? Ma'am, can you please tell me this? So people like that. Yeah. And the third type is the seekers of worldly possessions. They go to God for good marks in exams. They go to God and pray for a new PlayStation. They go to God and ask for a holiday to their favorite place. Yeah? And the fourth type are the wise ones. Wise ones are just in love with the God. So Krishna says, out of these, the wise one are very dear to me.
तो श्री कृष्णा अर्जुन से कहते हैं, हे भारत के वंशज, मुझे में 4 प्रकार के भक्त हैं जो मुझे भजते हैं। कौन कौन है वो? पहला वो जो दुखी है, रोते रोते मेरे पास आता है कि भगवान मेरे ये दुख को खत्म करो। फिर दूसरे होते हैं जिन्हें ज्ञान चाहिए होता है, जिज्ञासु होते हैं, सवाल पूछते हैं ये क्या है, ये क्या है ना। हमने देखा है कई बार जो बहुत ज्यादा सवाल पूछते हैं। फिर तीसरे होते हैं जिन्हें कुछ ना कुछ चाहिए होता है, कभी वीडियो गेम प्ले स्टेशन चाहिए होता है, तो कभी आई वॉच चाहिए होती है, तो कभी गियर वाली साइकिल चाहिए होती है, भौतिक सुख। और चौथे जो होते हैं वो ज्ञानी होते हैं, तो भगवान, जिन्हें सिर्फ भगवान से, ईश्वर से प्रेम होता है, जैसे मीराबाई, तुकाराम। तो श्री कृष्ण कहते हैं इन चारों में से जो ज्ञानी है, जिसे ईश्वर से प्रेम है, वह मुझे अति प्रिय है। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते, वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। After many births of spiritual practice, one who is endowed with knowledge surrenders unto me, knowing me to be all this. Such a great soul is indeed very rare. तो ऐसे बहुत ही दुर्लभ होते हैं जो कई जन्मों में आध्यात्मिक अभ्यास करने के बाद ज्ञान में मेरी शरण में आते हैं, समर्पित होते हैं और ये जानते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ। सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते, लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान्। Endowed with faith, the devotee worships a particular celestial god and obtains the objects of desire. But in reality, I only arrange these benefits to the devotees. कहते हैं भगवान की श्रद्धा से कोई भक्त जब किसी भी देवी देवता को पूजता है और उसे जो चाहिए वो मिल जाता है, वह देने वाला भी मैं ही हूँ। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः, परं भावमजानन्तः ममाव्ययमनुत्तमम्। The less intelligent thinks that I, the Supreme Lord Shri Krishna, was formless earlier and have now assumed this personality. They do not understand the imperishable, exalted nature of my personal form. श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि जो अज्ञानी है वो ये समझते हैं कि मैं पहले निराकार था और अब कृष्ण के रूप में अवतरित हुआ हूँ, परंतु वह ये नहीं जानते कि मैं ना तो कभी जन्म लेता हूँ और ना ही कभी मेरी मृत्यु होती है। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन, भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। O Arjun, I know the past, present, and future, and I also know all living beings, but no one knows me. श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं
भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों को जानता हूं। मैं सभी को जानता हूं, परंतु मुझे कोई नहीं जानता। Now, very interesting. Krishna is going to tell us the secret of peaceful dying. अभी सबसे रोचक जो है वो ये है, श्री कृष्ण बताने वाले हैं कि शांति से मरता कैसे है। साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञाञ्च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। Those who know me as the basis of 5 elements, as Adi Bhuta, me as the basis of all gods, as Adi Deva, and as the basis of all actions, as Adi Yajna, such a yogi, even at the time of death, remembers me with a calm and peaceful mind. तो भगवान कहते हैं, जो ये जानता है कि मैं पंच तत्व का आधार हूं, आदिभूत हूं, मैं ही सभी देवों का आधार हूं, आदिदेव हूं, और मैं ही कर्मों का आधार, आदि यज्ञ हूं। ऐसा योगी जो ये जानता है, वह मृत्यु के समय में भी शांत और स्थिर मन से मेरा ही स्मरण करता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः। चलो साथ में अब चैंटिंग करते हैं। लेट्स ऑल चैंट टुगेदर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।